It is my great pleasure again to be with you all. ये हमारा खुशी की बात है फिर से आप लोग का बीच में आने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता किया. I just thank God that these days God is protecting us in His wings. That is the most important thing. We need to be extremely thankful to God because we are kept safe for a purpose. और आजकल का समय में परमेश्वर हमें संभालता है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के लिए रखा हुआ. Praise the Lord. Hallelujah. None of us should think that we are kept safe, we are alive because of our merits, because we are so special. No, nothing like that. God's mercy and His grace. हम लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग जो जिंदा है हमारा गुण या हमारा जो खासियत नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग आज जिंदा. Praise the Lord. With that attitude, let's be in His presence tonight as we get into the Word of God, which God has given me in my heart to share with you all. और आज जो है वही सोच के साथ हम परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहता हूं. प्रभु हमारा हृदय में जो है आज शाम में बात करने पाए. Tonight I just wanted to talk to you about a very important aspect of Christian life, and I just wanted to coin the message as the path to influence. आज शाम के समय में एक मसीही जिंदगी का सबसे मुख्य एक बात मैंने आपको बताना चाहता हूं, जिसका शीर्षक मैंने ये देना चाहता है कि पाथ टू इन्फ्लुएंस या हमें प्रभाव देने वाला मार्ग या रास्ता. So I'm trying to share a slide. So are you able to see my screen? Yes. The slide which I'm sharing? Yes, yes. Okay. So let's read one verse and then start from there. Matthew chapter 5, verse 14 to 16 is a very familiar verse. This has been told by Jesus Christ during His Sermon on the Mount. और हम लोग एक पद पढ़ के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे. मत्ती समाचार 5 अध्याय उसका 17 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह जो है पहाड़ी उपदेश देने के वक्त में बोला गया एक पद है. Jesus Christ is telling here, you are the light of the world. A city that is on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it on a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. यहाँ पे जो है 5 का 14 से हम लोग पढ़ेंगे. वहां पे लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता. लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करें. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ is telling here, you are the light of the world and you are the salt of the earth. यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो. Whenever we hear this statement, we will all get excited because if you deconstruct that statement, we can see an absolute statement of a privilege there that you are the light and you are the salt. अगर ये पद को हम लोग थोड़ा सा दूसरा तरीका में सोचेंगे तो हमें बहुत गर्व की बात आएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुत सीधे कह रहा है, तुम जगत की ज्योति है और तुम पृथ्वी के नमक है. Praise the Lord. And when you hear that statement, it's all about a privilege, a position of a Christian disciple. तो जब हम लोग ये पद को जब देखेंगे या सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो मसीह जीवन में हमारे लिए जो मिला हुआ सुविधा है
या एक स्थान है। But if you look at the statement very carefully, Jesus Christ didn't say that you are the light, or he didn't say that you are the salt, but there is an important phrase followed by that saying, you are not the light, but you are the light of the world. तो यीशु मसीह यहाँ पे सीधे नहीं बोला कि तुम ज्योति है, नहीं बोला, या तुम नमक है, नहीं बोला। वहां पे एक और शब्द बीच में इस्तेमाल करके यीशु मसीह बोला है, जो यहाँ पे लिखा हुआ, तुम पृथ्वी के नमक है, या तुम जगत की ज्योति। Praise the Lord. That's very important for us to understand that. I'm going to explain that. Now, if Jesus would have stopped by saying, you are the light, we all would have been very happy. Wow, we are the light of the world. और अगर यीशु मसीह सीधे कहेगा कि तुम लोग उजियाला है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि हाँ, हम तो ज्योति है, बहुत अच्छा बात है। But Jesus told, you are the light of the world. लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जगत के ज्योति हो। In the same way, if Jesus would have stopped, you are the salt, you would have been very excited. But now, Jesus didn't stop there by saying, he's adding one more phrase there, you are the salt of the earth. तो यीशु मसीह ये कहकर बंद करेगा कि तुम नमक हो, तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका स्थान हमें मालूम है। लेकिन यीशु मसीह एक और बात जोड़ के जो है आगे बढ़ रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो बोल के समाप्त किया। So that means we are not the light, but we are the light of the world. We are not the salt, we are the salt of the earth. तो कहने का मतलब है कि हम केवल ज्योति नहीं, हम जगत की ज्योति है, और हम केवल नमक नहीं, हम पृथ्वी के नमक है। So that is what I have described in this slide. If you can see this slide, or I will explain that. The path to influence. Several times we ask God, God, how can I be influential in my life? तो ये जो है बात मैंने जो है एक स्लाइड के द्वारा आपके सामने दिखा रहा है कि मैंने आपको समझेगा कि नहीं, हम नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसका विवरण में जाएंगे। तो सवाल ये हम पूछते हैं प्रभु से कि प्रभु, लोगों का जीवन को या दुनिया के लोगों को कैसे मेरे जीवन से प्रभावित हम कर सकते हैं। And that is a very common question from a Christian perspective, right? We all ask God, Lord, how can be influential? Why I am here, right? What is the purpose of my life? Several times we ask that question to God. और हम लोग प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों यहाँ पे आया है, मेरा जिंदगी का क्या इच्छा है। But look at this verse. I'm just going to deconstruct this verse in such a way that you will be able to understand three elements in a very sequential way we need to follow, so that we will be able to influence others. और मैंने जो है उस पद को थोड़ा तोड़कर आपको बताना चाहता है ये विवरण के द्वारा, ताकि हम समझे कि हम कैसे लोगों का जीवन को प्रभावित कर सकता है। You all have to follow me very carefully, because I'm just going to explain some of the technical terms, and then I will take few examples from the Word of God, so that we'll be able to understand the concept which I'm trying to explain here through this verse. तो इसलिए मैंने चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुने, ताकि आप लोग जो है बातों को पूरी तरह से समझे, और उसके बाद जो है बाइबल से भी दो उदाहरण लेके मैंने आपको समझाएंगे। So if you look at the three phrases which I have put there, three words. One is acknowledge, second is believe, and third is commit. A, B, C, so that it will be easy for you to remember. तो आप लोग ध्यान कीजिएगा स्क्रीन में, उसमें जो है तीन शब्दों को इस्तेमाल किया हुआ है कि सबसे पहला शब्द जो है एक्नॉलेज या अंगीकार करना, दूसरा बिलीव, आप भरोसा रखना है, विश्वास करना, और तीसरा कमिट, आप समर्पण करना। So what we need to acknowledge? तो हमें क्या अंगीकार करना है? The acknowledgement is about the purpose in your life. You need to acknowledge the purpose. तो यहाँ पे जो अंगीकार की बात जो लिखा हुआ है कि वो अंगीकार किस चीज का अंगीकार करना है, हमारा जिंदगी का उद्देश्य का अंगीकार हम करना। That is the bigger circle. You are seeing that. The bigger circle which you are seeing is
your purpose, your bigger purpose of your life in this world. और इस जो है आगे वाला घोड़ा में सबसे बड़ा घोड़ा वही है कि हमारा जिंदगी का सबसे बहुमूल्य बात यह है कि हम लोग इस धरती पर रहने का उद्देश्य क्या है। And that will determine who you are, who you are. Look at this word, who you are, who am I? That will determine that aspect of your life. Who we are, who am I? Who am I? और हमारा जो है जिंदगी का उद्देश्य आगे हमें लेके जाएगा कि हम कौन है, कि हमारा जो है पहचान में वो दिखाएगा, कि हमारा उद्देश्य हमें दिखाएगा कि हमारा जिंदगी का पहचान क्या है। From the context of the words what we read, what Jesus Christ is telling, the purpose is you are the light. लेकिन हम लोग जो वचन में वापस आएंगे तो वहां पे यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम ज्योति है। That is the purpose. वो हमारा उद्देश्य है। Now that is not enough. The second step is you need to believe your placement. Praise the Lord. वो जो है पहला जो बात है, लेकिन वहां पे काम पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा कदम में हम आना चाहिए, जिसमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य अब परमेश्वर क्या रखा हुआ। That means you are particularly, specifically placed in a particular office. You are specifically placed in a particular country. You are speaking a language very specifically. You are part of the church. You are part of the family. God has very carefully and very closely placed you in the respective areas you are to acknowledge, to accomplish the bigger purpose, that is the light. तो ये समझना चाहिए आपको, जो है आपका भाषा समझने वाला एक चर्च में आपको रखा गया, एक जगह में आपको रखा गया है, आपको एक विशेष ऑफिस में आपको रखा गया है, आपको एक फलना जगह में प्रभु ने इसलिए रखा गया है कि आप अपना जीवन का उद्देश्य का अंगीकार वहां पे रह के करें। Praise the Lord. So that will answer your question, why I am here in this particular place. तो इसलिए जो है हमें ये अंगीकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें समझेगा कि वो अंगीकार करने से कि हम इस जगह पे क्यों आया हुआ। And that is why Jesus told, you are the light, that is the purpose, but you are the light of the world, that is the placement. Hallelujah. आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह बोला कि तुम ज्योति है, वो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है, लेकिन तुम जगत का ज्योति है, वो तुम्हें रखा हुआ एक जगह है। The moment we hear about our placement, we will be sad. Lord, I cannot be placed in darkness, Lord. I can be the light, but not in darkness. जिस समय जो है हमें पता चलता है कि हम लोग जो है जगत में रखा हुआ है, तो हम लोग प्रभु से बोलेंगे नाराज होके कि प्रभु ये मुझे अच्छा लगता है कि हम उजियाला है या हम ज्योति है बोलना, लेकिन अंधकार का बीच में हम ज्योति चमकने के लिए जब मुझे रखा हुआ है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। Let me personalize it a little further. Lord, I am okay to be a Christian, but not in this family. I am okay to be a Christian, but not in this office. I am okay to be a Christian, but not in Bihar. तो उसको थोड़ा सा और विवरण में जाएंगे तो इस प्रकार बोल सकता है कि प्रभु में एक अच्छा मसीह है, लेकिन मैं इस परिवार में नहीं रहना चाहता हूँ। प्रभु में एक अच्छा मसीह है, लेकिन मैं इस ऑफिस में काम करना नहीं चाहता। प्रभु में एक अच्छा मसीह है, लेकिन मैं बिहार में रह के जो है रहना नहीं चाहता हूँ। आप मैं जो बोल रहा आप समझ रहे मेरे ख्याल से। So we may ask God, Lord, I'm not comfortable here, but I wanted your purpose to be fulfilled in my life. उस प्रकार एक अवस्था में हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु मैं यहाँ पे जो है कंफर्टेबल नहीं है, मेरे जीवन में जो है उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपका उद्देश्य भी पूरा करना भी चाहता। That's not possible. I'm going to explain that. वो कभी संभव नहीं होता है, मैंने आपको बताएंगे क्यों नहीं। And the third part is commit to the mission. Commit to the mission. और तीसरा कदम जो है, आप परमेश्वर का उद्देश्य के लिए अपना जीवन को समर्पित करना। What is the mission in this word? Let's come back to the words which we read. Let your light so shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. That is the mission.
और आपको जो है इस दुनिया का कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य जो है 16 पद में लिखा हुआ है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। So once you acknowledge your purpose, you know who you are. And then when you believe in your placement, you understand why you are there. And then thirdly, when you commit to the mission, you will understand what you need to do specifically at that point of time. तो सबसे पहले तुमको अंगीकार करना है कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा, तुम्हें भरोसा रखना है कि उस जगह में परमेश्वर तुमको उस उद्देश्य के साथ रखा हुआ क्यों है। और तीसरा, तुम्हें समझेगा कि तुम्हारा जो है जीवन का कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जो उद्देश्य पूरा करने के लिए। Several times we will reverse the order. We all wanted, Lord, I want to do your missions. I want to do something for you. But God is saying that is not possible unless you believe in your placement. That is the middle circle. The purpose cannot be connected to your mission if you try to skip the placement. Hallelujah. अगर परमेश्वर से हम लोग बोलेंगे प्रभु कि मेरा जीवन का उद्देश्य मुझे मालूम है, मेरा जगह रखा हुआ मुझे मालूम है, लेकिन कर्तव्य नहीं मालूम है, वहां पे बदलना चाहते हैं, तो प्रभु बोलेगा कि जब तक मेरे उद्देश्य को अंगीकार करके जहां पे मैंने रखा हुआ है वहां पे रहेंगे, तभी जो है मैं जो आपको देने वाला कर्तव्य आपको पूरा कर सकता। If anybody who is hearing me is still questioning your placement, let me tell you, you have not come to a place where you cannot commit to your mission. Praise the Lord. तो आप, can you repeat please? Yeah, if anybody who is hearing me is still questioning the placement of your life, you have not come to the point of committing yourself to the mission. तो मुझे जो सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, आप अपना जीवन का कर्तव्य के बारे में अभी भी अनजान रहते हैं, तो आप जो है अपना कर्तव्य पूरी रीति से समझने वाला व्यक्ति नहीं बना। Let me break it up for you. If you're still questioning about your parents, if you're still questioning about your wife, if you're still questioning about your husband, if you're still questioning about the church you are part of, if you're still questioning about the boss, if you're still questioning about your friends, let me tell you, you have not believed the placement God has made in your life. You are still struggling to believe the placement. Unless you believe the placement, you cannot commit to the mission. तो मैंने जो है और सरल तौर से बताना चाहता है, अभी भी आप सवाल पूछ रहा है आपको फलना परिवार में क्यों जन्म दिया, अभी भी आप सवाल पूछ रहा है फलना ऑफिस में मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है, अभी भी आप सवाल पूछ रहा है कि फलना जो है मित्र मुझे क्यों मिला है, अभी भी आप सवाल पूछ रहा है कि फलना चर्च में मैंने क्यों जा रहा है। तो अगर ऐसे सवाल पूछने वाला व्यक्ति अगर आप होता है, तो उसका कहने का मतलब है आप अभी तक आपको भरोसा नहीं हुआ है, परमेश्वर ही आपको जो एक जगह में रखा है, उसका पूरा भरोसा आपका जीवन में नहीं आया। Oh, praise the Lord. The moment you start believing in your placement, the purpose will start getting connected to the mission. Are you able to understand that? Let me repeat you. When you start believing in your placement, the purpose will automatically start connecting to the mission. I will going to explain to you from the word of God with a few examples. तो आप जहां पे आपको रखा हुआ है, वो प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, वो बात पर जब विश्वास आप नहीं करेंगे, तब आपका जीवन का उद्देश्य और आपका जीवन का कर्तव्य में एक रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। आपको जो भरोसा रखना चाहिए परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है, तभी आपका जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य के बीच में एक रिश्ता बन पाएगा। Sometimes I ask God, Lord, where is my mission? Can I go to Africa for my mission? God is saying, your mission is where I have placing you. कभी कभी मैं प्रभु से पूछता है कि प्रभु मेरा कर्तव्य कहाँ पे है, मैं कहाँ पे आपका जो है काम पूरी करना है, मुझे फलना जगह पे जा सकता है। तो प्रभु ने मुझे बोलता है कि जहां पे मैंने तुम्हें नियुक्त किया है वहां पे है तुम्हारा कर्तव्य पूरा करने का जगह। So what does that mean? So that means we cannot go to Africa as a missionary. Yes, you can, but before that God has to change your placement. Praise the Lord. तो हमें परमेश्वर से पूछ सकता है कि प्रभु क्या मुझे अफ्रीका में मिशनरी बन के नहीं जा सकता है? तो जा सकता है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर हमें जो है हमारा जगह को जो है बदलने का जरूरत है।
So until God change your placement, you will not be able to connect the overall purpose with your mission if you are forcing yourself to go to some place where God don't want you to be. तो परमेश्वर जहां पे आपको नहीं चाहता है वहां पे जाने के लिए आप जबरदस्ती जो है प्रयास करेगा, वहां से ये तब जो है आप जहां पे परमेश्वर ने रखा हुआ है उसी जगह के लिए परमेश्वर आपका जो जीवन में उद्देश्य दिया वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा. So no, we have to start praying, Lord, before you connect me with the mission, please help me to understand. Please give me the conviction that I am rightly placed by you, Lord. तो इसलिए हमारा कर्तव्य पूरा करने से पहले जो कर्तव्य आपको दिया गया है वो कर्तव्य पूरा करने से पहले परमेश्वर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि प्रभु मुझे भरोसा दीजिए कि जिस इलाका में मैं है, जिस जगह पे मैं है, वहां पे आपने मुझे रखा हुआ. Sometimes, when I go for youth camps and all, I ask this question to the young people. So once I was in North India, I just keep the name the place unnamed. So I asked the kids there, if God would have given you an opportunity to choose your birthplace, how many of you would have chosen the place where you are right now? तो मैंने जो है नॉर्थ इंडिया में एक कैंप के लिए जो गया था, जवान लोगों का कैंप में, जगह में बताना नहीं चाहता हूँ, वहां पे जाके जवान लोगों से मैंने पूछा कि मान के चलिए आपको परमेश्वर का मौका दे रहा है जन्म लेने का जगह चुनने के लिए, कहां पे जन्म होना है वो जगह को चुनने के लिए, तो आप लोग कहां पे चुनेंगे, आप लोग क्या करेंगे? Most of them told, no, we will not be choosing the place where right now we are. We will be choosing maybe America or Europe or some other country. Several people came up with the different countries because they have not come to a conviction that there is a placement, there is a bigger purpose of God in placing you in the place where you are right now. तो काफी लोग जो है यही जवाब दिया कि हमने जो है जहां पे अभी जन्म लिया है वो गलत जगह पे है, मुझे अमेरिका में या यूरोप का कई कंट्री में मुझे जन्म लेना चाहिए था. देखिए हमारा कर्तव्य जब तक पूरा नहीं होगा कि तब तक हम विश्वास करें कि एक जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा है, वो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ. Praise the Lord. Hallelujah. And then I went on asking one more question. How many of you still choose the same parents if God would have given you an opportunity to choose your parents before your birth? तो मैंने जो है फिर से उन लोग से सवाल पूछा कि कितना लोग जो है अपना माँ बाप को चुनेंगे अगर परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है खुद जो है माँ बाप को चुनने का. Most of them told, no, we would have chosen some other parents. काफी लोग बताया कि जी ऐसे मौका मिलने पर हम दूसरा माँ बाप को चुन सकता. Are you able to understand this? आपको समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा? This is very deep. Jesus Christ is telling that you are the light of the world. You are the salt of the earth. There is a bigger purpose, but there is a specific placement and a very specific mission for you at that point of time. और यीशु मसीह जो है बोल रहा है कि तुम जगत का ज्योति है, तुम्हारे लिए जो है एक उद्देश्य के साथ मैंने वहां पर रखा हुआ है, एक विशेष समय के लिए मैंने तुम्हें वहां पर रखा हुआ. The moment your placement is according to the will of God, let me tell you, you will be able to see the marvelous plan of God of purpose getting connected to mission on a continuous basis in your life without even your knowledge. तो जब तक जो आप जो है जहां पे आपको रखा गया वो परमेश्वर का जो है इच्छा के आधार पर है, आप भरोसा रखेंगे और समझेंगे, तब तक जो है आपके जीवन के द्वारा जो होने वाला कर्तव्य के ऊपर में परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष होते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. I just wanted to take a couple of examples so that you'll be able to understand this concept very well. तो मैंने जो है एक दो उदाहरण को साथ में लेना चाहता हूं ताकि आप लोग जल्दी इसको समझें. Acts chapter 16 verse 26. प्रेरितों का काम 16 अध्याय और उसका 26 पद में हम जाएंगे. Can somebody read that verse? Acts chapter 16 verse 26. कोई भी एक व्यक्ति पढ़ सकता हूं ये जो है पद को. इतने में
एकाएक बड़ा भूकंप आया, Yes. यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और Hmm. तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। This is a narrative from Paul and Silas' life. Luke is giving a narration of that experience in the prison. यहाँ पे जो है पौलुस और शीलास का जिंदगी के बारे में एक विवरण जो है लूका जो है प्रेरितों का काम में दे रहा। When you get time, you have to read that Acts chapter 16, but I'm not going to get into the details. But look at the situation there. Paul and Silas were in jail, and all of a sudden there was an earthquake, and all of their chains were loosened. यहाँ पे जो है पौलुस और शीलास जो बंदीगृह में है उसी वक्त के बारे में लिखा है कि उस वक्त में एक बड़ा भूकंप आ गया। भूकंप के साथ बंदीगृह का नींव हिल गया और इन लोगों का द्वार खुल गया और सबका बंधन भी खुल गया। So this is a perfect situation where they can easily run away by saying that, oh, God has opened the door for us. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक मौका मिला कि इन लोगों को भागने के लिए कि ये बोल के देखिए परमेश्वर जो है कितना अच्छा रास्ता हमारे लिए खोला। This is the intensity here. You have to understand here. But Paul and Silas, they believed in their placement in that prison for somewhat time, because when they were about to run, this is my imagination, when they were about to run, the Holy Spirit would have spoken to them, guys, don't run. This is your placement right now for a couple more hours. और जब वो लोग भागने के लिए सोचा कि ये मेरा भावना, मेरा सोच, मेरा कल्पना है कि भागने के लिए जब तैयार हो गया तो पवित्र आत्मा उन लोग से कहा कि पौलुस शीलास आप लोग को अभी नहीं भागना, इसी वक्त जो है आप लोग को यहाँ पे ठहरने के लिए मैंने जो है ये काम किया हुआ। Oh, praise the Lord. Just imagine if they would have run away from that jail, that prison at that point of time. What would have happened later? We know that because they believed in their placement, even though the chains were loosened, even though the doors were open, they still continued in their conviction of their placement in that prison, so that later the jailer was brought to Christ. Hallelujah. तो वे लोग जो है भागने के वक्त में पवित्र आत्मा की आवाज के साथ जो है वे लोग तैयारी हो गए वहां पर ठहरने के लिए। उन लोग का बंधन खुलने के बाद भी वहीं पर ठहरने के लिए तैयारी होने के कारण एक जो है बंदीगृह का मालिक जो है विश्वास में आने का एक कारण बन गया। Oh, praise the Lord. If we would have been there, we would have told God, this is the right opportunity, let me run away. That's what the jailer also thought, because jailer came and all of a sudden he was seeing that everything has been, in a chaos, and he was about to kill himself. तो इसी प्रकार के एक अवस्था में जो है वे लोग भाग सकता था और जेलर भी बंदीगृह का सूबेदार भी सोचा कि सब भाग गया है और अपने आप को जो है मारने के लिए प्रयास भी किया। From a worldly perspective, that is an opportunity for them to run away. And maybe we can spiritualize also, because God, then why did the chains were loosened? It's a perfect opportunity for us to run away. But God told them, wait, your placement is not over. तो दुनियादारी सोच में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ सकता हूं कि वो भागने के एक अच्छा मौका था, लेकिन परमेश्वर उन लोग से बोला कि मत अभी भागना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग को भागने का वक्त नहीं आया। See the impact of believing in the placement. The jailer got saved. He and his family got baptized, and it was a great impact for the church which has been established there. देखिए वहां पे go ahead. देखिए वहां पे देख रहा है कि वो लोग भागने का जो है मौका मिलने के बाद भी पवित्र आत्मा के आवाज के साथ जो है वहां पे ठहरने के कारण एक जेलर या माने बंदीगृह का मालिक जो है विश्वास में आने के लिए माने कारण बन गया। Oh, praise the Lord. I was so moved by that word. How many times I have started thinking from my perspective and didn't believe in my placement, and because of that I missed n number of opportunities to get connected to the mission. तो कितना बार जो है मैं मेरे जीवन के बारे में सोचता है, कितना बार जो है मुझे परमेश्वर रखा हुआ जगह से भागने के कारण जो है परमेश्वर मेरे जिंदगी के द्वारा करने वाला कर्तव्य से
कर्तव्य का रिश्ता जो है मुझे टूटना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। Oh, praise the Lord. And when you start believing that placement, God will start using in a very, very specific way. And then you will be able to see that the purpose, the bigger circle is getting connected to the mission automatically in your day life, in your day-to-day life, 24/7, 365 days. और जब आप लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने आपको फलना उद्देश्य के साथ फलना जगह पर रखा हुआ है, तब जो है आपका जीवन का कर्तव्य पूरा करना शुरू होते हैं, उसके साथ एक रिश्ता जुड़ जाते हैं, आपका जिंदगी का कर्तव्य और आपको रखा हुआ जगह के बीच में एक रिश्ता जुड़ जाते हैं। I have talked to you about this, touched upon this before when I was talking, but I just wanted to explain in the detail. If you go to Acts chapter 9, तो मैंने जो है और विवरण के लिए जो है प्रेरितों का काम 9 अध्याय में अगर जाएंगे, there is a person called Ananias there. वहां पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है अनन्या। And when Luke is explaining about the encounter of Saul towards the way when he was walking towards Damascus, there are two important things which is getting connected there, which I just wanted to bring to your attention. तो हनन्या जो है, जब पौलुस का जो है उद्धार होने के समय में हनन्या का जिंदगी के बारे में जो है दो चीज मैंने जोड़ के बोलना मैं चाहता हूं। लूक जो है वहां पे जो जिसके बारे में लिखा हुआ। In Acts chapter 9, there are two particular verses. Number one, when Saul was about to reach Damascus, there was a light, and then the encounter of him with Jesus happened there. और 9 का पहला पद में लिखा हुआ है कि साउल जब दमस्कुस का जो है पास जब पहुंचने वाला था, तब जो है उनको एक उजाला आकाश से जो है दिखाई पड़ा और उन्होंने जो है नीचे जो है गिरना पड़ा। So you have to come with me very closely here. So now I ask God, why Damascus? Why Damascus, God? Why can't it be in some other place? तो मैंने जो है प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्यों दमस्कस के जो है दरवाजा के पास इन्होंने गिर गया, और कई जगह में तो उसको गिर सकता था ना। The answer is there in the same passage. If you come down, there is another verse. There was a disciple named Ananias in Damascus. और जो है उसका नीचे जो है आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उसका 10वां पद में लिखा है, दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था। So now, just park that point in your mind for a minute now. I will come back to that. आप लोग जो है ये बातों को अपना मन में रखिए, मैंने हम उसमें वापस आएंगे। So when the Holy Spirit is trying to introduce a disciple, and when later when Paul is talking about his experience of encounter to the king, he was talking about this person called Ananias, that he is a great man of God and he had a great testimony. But when Luke is introducing this person, he is just simply saying that he was a disciple in Damascus. और जब आगे में आप लोग पढ़ेंगे तो पौलुस जो है शाऊल पौलुस बन गया, और पौलुस जब राजा के साथ जो है वाद विवाद करने के वक्त में राजा से जो है हनन्या के बारे में बहुत अच्छा बात, बहुत ज्यादा बात, बहुत महान बातों के बारे में लूका जो यहाँ पे लिख रहा है कि लूका कह रहा है कि एक चेला हनन्या जो है वहां पे लिखा हुआ। So if you look at that statement very carefully, what the Holy Spirit is trying to say here, before Saul's conversion, before Saul's encounter with God, God had already placed a devoted disciple called Ananias in a place called Damascus to continue as a disciple. Praise the Lord. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पौलुस के बारे में जब परमेश्वर योजना बनाने के पहले, पौलुस जो है शाऊल जो है वहां पे आने से पहले शाऊल का आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन को मदद करने के लिए परमेश्वर पहले से हनन्या करके एक चेले को वहां पे रखा हुआ। Oh, praise the Lord. And this is my imagination. Every day
the God used to speak to Ananias. It is written there. That is the reason why when God called Ananias one day, Ananias replied, Lord, I am here. Why did you call me? तो यहाँ पे जो है आपको पता चलता है कि हनन्याह परमेश्वर से बात करने का वक्त में हनन्याह को प्रभु ने जो बुलाया, तो हनन्याह पूछा परमेश्वर से, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया? So he used to speak to God, and he was, this is my imagination, Ananias maybe sometimes asking God, Lord, what is my mission in this Damascus? What I am doing here? और हनन्याह जो है कई साल से वहां पे रह रहा होगा, तो ये मेरा मन का सोच है। तो हनन्याह परमेश्वर से पूछा होगा कि परमेश्वर क्यों मुझे जो है ये दमिश्क में रखा हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य है? I just wanted to bring in the current context. I'm not preaching in a Zoom meeting. I'm not leading any worship. I'm not talking to anybody. I'm just continuing as a disciple in the place called Damascus. Why? तो वहां पे जो है कि सवाल आ सकता है, वहां पे हनन्याह जो है पूछ रहा है परमेश्वर से, मेरा इमेजिनेशन है कि मैंने एक जूम मीटिंग में प्रचार नहीं कर रहा है, मैंने कोई वर्शिप लीड करने के लिए नहीं जा पा रहा है, कुछ बड़ा बात नहीं कर पा रहा है, दमिश्क में मैंने बांधा हुआ है, क्यों प्रभु? God would have told Ananias, wait, believe in your placement. Praise the Lord. परमेश्वर हो सकता है हनन्याह से बोला होगा कि हनन्याह तुम परेशान नहीं होना, जहां पे मैंने तुम्हें नियुक्त किया है उस जगह को मैंने नियुक्त किया है करके तुम विश्वास कर लेना। One day, here comes the climax. One day, a great man, Paul, has to be converted. Heaven decided, let me choose the place. Let me choose the person. And that is the reason why when Saul was about to reach Damascus, the Holy Spirit connected the placement of a believer, placement of a disciple called Ananias to the mission of the salvation of Saul. Wow. तो परमेश्वर जो है पहले से निर्धारित किया, एक दिन जो है दमिश्क में शाऊल आएगा, और दमिश्क में शाऊल का जो है मन फिराने के वक्त में वहां पे जो प्रभु का चेला है जो हनन्याह है, हनन्याह के साथ जो है पौलुस को जो है रिश्ता बनाना है। तो इसलिए जो है परमेश्वर पहले से वहां पे जो है हनन्याह को रखा गया कि एक महान व्यक्ति जो होने वाला शाऊल का जीवन को स्पर्श करने के लिए, उसका जीवन को सुधारने के लिए एक व्यक्ति को वहां पे परमेश्वर पहले से रखा गया। Ananias, it is worth waiting, believing in your placement. Hallelujah. Because God used you to commit to a historical mission in the Christian history just because you continue to believe in your placement in Damascus. तो हनन्याह, तुम जो है परमेश्वर का जो है तुम्हें नियुक्त किया जगह के बारे में तुम भरोसा रखने के कारण तुम्हारा जीवन से एक बड़ा जो है कर्तव्य मुझे देने वाला है, इतिहास बनाने वाला एक बड़ा सेवगाई जो है तुम्हें करना पड़ेगा, वो सेवगाई के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया। Oh, praise the Lord. Hallelujah. You may be asking, Lord, why I am this family? Let me tell you. Believe in your placement. God has kept you with a purpose there. We have seen that when I talked about, you are being observed in that message I told, right? About the mother and grandmother of Timothy. I just touched upon that point. मैंने जो है पहले जो संदेश बताया था, तो वहां पे तिमोथी के नानी और माँ के बारे में मैंने जो बताया था, वहां पे वे लोग जो है तिमोथी जो है इन लोग को नजर रखा हुआ था, इन लोग को देखते रह रहा था। If anybody who is listening to me asking why I'm here, it could be for a Timothy. Why I'm here, it could be for a Saul. It could be for your children. It could be for your friend. Who knows? But what you need to do, acknowledge the purpose of a disciple. Continue to believe in your placement, and you will start seeing you will be connected to the mission. But there is a choice from your side. You have to
obey when the mission comes. मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि आप फलना परिवार में क्यों मैंने आया है, फलना जगह पे क्यों मुझे रखा है। हो सकता है एक शाऊल के लिए आपको रखा होगा, हो सकता है एक व्यक्ति को आपका मित्रों के लिए आपको रखा होगा, हो सकता है कुछ व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाने के लिए आपको रखा होगा। लेकिन आपको समझना चाहिए परमेश्वर ने आपको रखा गया है उस जगह पे, उस परिवार में, और उसके लिए आपको बाद में आज्ञाकारी भी करने का जरूरत है कि परमेश्वर मुझे रखा हुआ है और उसी का आज्ञाकारी मुझे बनना। Praise the Lord. One day God called, the angel spoke to Ananias. एक दिन परमेश्वर की स्वर्गदूत जो है हनन्याह से बात करने आया। Ananias thought it is just for a casual conversation every day. God called me, calling me. So maybe at another conversation, right? Whether to ask whether Ananias, you had breakfast or something like that. I'm just imagining. और मेरा मन में सोच रहा है, हो सकता है हनन्याह ने सोचा कि जैसे प्रतिदिन जो है मेरे प्रभु से बात करते हैं, वैसे जो है कुछ सवाल पूछने के लिए स्वर्गदूत आया होगा कि हनन्याह क्या नाश्ता किया है तुमने, इस प्रकार का मेरा मन का सोच है कि इस प्रकार का कोई सवाल जो है जो लगातार पूछते आ रहा है उसको पूछने के लिए स्वर्गदूत आया होगा, ऐसे हनन्याह ने सोचा। But that day was special. लेकिन उस दिन जो है उनके लिए बहुमूल्य एक दिन था। Ananias, you have been believing in your placement with a purpose. But let me tell you, this is the time for you to commit to the mission which I've been preparing for you. तो हनन्याह, तुमने जो है अभी तक जो है मेरे जगह पे मैंने नियुक्त किया उस जगह पे तुम ठहर रहा था, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि जो कर्तव्य मैं तुम्हारे ऊपर में जो सौंपने वाला है उस कर्तव्य को यहाँ रह के पूरा करने का। Pause for a minute. Just imagine if Ananias would have got frustrated with God and changed this placement from Damascus to some other place. What could have happened to that mission? आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, हनन्याह जो है पहले से निराश होके दमस्कस से जो है अपना रहने का जगह जो है दूसरा कई जगह में अगर कर देता, तो परमेश्वर इस घटना में, शाऊल का घटना में, पौलुस का घटना में क्या हो सकता था? That's what happened several times to us. When God comes with a mission, we are out of place. ये हमारा जीवन में भी कई बार होता है, जब परमेश्वर हमारे लिए जो है कर्तव्य को लेके आएंगे, लेकिन हम उस जगह पे कभी रहता नहीं है। God wants the jailer to be saved, but God is looking for somebody to be placed in the prison. Are you available for that? परमेश्वर चाहता है कि जेल का मालिक या बंदीगृह का मालिक उद्धार पाने के लिए, उसके लिए बंदीगृह के अंदर में किसी को रखना भी प्रभु का इच्छा है। क्या आप उसके लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है? If you are not available, how God will connect you with that mission so that you can commit to that mission? तो अगर आप जो है उस वक्त में उपलब्ध नहीं है, तो आपको जीवन में परमेश्वर वो देने वाला जो कर्तव्य से परमेश्वर कैसे आपको कनेक्ट कर सकता? Several times you ignored the whisper of the Holy Spirit when you travel in a bus, when you travel in an aeroplane, when you travel in a train. The Holy Spirit would have given you a prompting. This is the placement. Why don't you speak to that person? If you would have you missed an opportunity to connect to the mission. तो कई बार गाड़ी में सफर करने के वक्त में, प्लेन में सफर करने के वक्त में, या और कई जो है जाते वक्त में आपके बगल में जो बैठने वाला लोगों से बात करने के लिए कितना बार पवित्र आत्मा आपका जीवन में जो है प्रेरणा दिया होगा कि जब हम लोग वो पूरा नहीं करने पर वो मौका हमारे लिए खो जाते। Praise the Lord. I have shared you with this experience, with this story, but I just wanted to share once more. एक कहानी जो है मैंने आपके सामने जो है एक बार बताया था, उसको दोबारा बोल के जो है मैंने आगे बढ़ना चाहता हूं। Because based on the context, I just want to explain that. उसका पृष्ठभूमि दूसरा है, इसलिए मैंने उसको फिर से विवरण देना चाहता हूं। One of the former American president
He was telling about an experience in his life. एक पहले का जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट अपना जिंदगी का एक घटना के बारे में जो है बोल रहा था। One day he was in a barber shop to cut his hair. एक दिन उन्होंने जो है नाई के पास गया, जो सैलून में गया कि अपना बाल को बनाने के लिए, काटने के लिए। When he was in the salon, he was sitting there. All of a sudden, there was a man entered into that shop. और वहां पे जो है इंतजार करने के वक्त में अचानक एक व्यक्ति आया जो है सैलून में। And when he could feel that the presence of God is filling that salon, और तुरंत जो है प्रेसिडेंट को अनुभव हुआ कि परमेश्वर का उपस्थिति जो है उस रूम के अंदर में जो है भर रहा। that person started speaking to the shop, to the another barber who is cutting his hair. और जहां पे जो है नाई जो है, वहां पे जो नाई जो काम कर रहा था, उन व्यक्ति से जो है बाहर से आया हुआ व्यक्ति बात करने लगा। And he was overhearing the conversation. और प्रेसिडेंट जो वहां पे बैठा हुआ था, उन्होंने जो है इन लोगों का बातचीत सुन रहा था। After hearing their conversation, he could feel that that person is a man of God. और वो बातचीत सुनने के बाद प्रेसिडेंट को पता चला कि वो व्यक्ति जो है एक प्रभु का दास है या परमेश्वर का एक व्यक्ति है। And this is the last statement of that experience he told. I left that salon with having an experience of attending a spiritual crusade. Did you understand that? और वो बातचीत जो है खत्म होने के बाद जो है प्रेसिडेंट ने इस प्रकार बोला कि जब वहां बैठ के जो है लोग का बातचीत सुनने के वक्त में मुझे ये लगा कि मैंने जो है एक क्रूसेड को अटेंड कर रहा है या एक महा मीटिंग को जो है मैंने अटेंड कर रहा है। And later he realized that that person was D.L. Moody. बाद में जो है प्रेसिडेंट को पता चला कि जो व्यक्ति अंदर आके बात किया है वो D.L. मूडी है। For a casual visit to a barber shop, D.L. Moody believed in his placement. Oh, are you able to understand the depth of this aspect? और एक साधारण बात बोलने के लिए जो सैलून में आया, नाई के पास आया, तो D.L. मूडी जो है विश्वास करके आया है कि उनको परमेश्वर ने जो है वहां पे भेजा हुआ। I think the founder of the World Vision only prayed like this, if I'm remembering correctly. Lord, I surrender my day in your hand. Today's itinerary belongs to you, Lord, and you can change my itinerary according to the agenda of the heaven. I didn't get the word. Itinerary means today, whatever I'm going to do today. The program. Yeah, the program belongs to you, and you can change at any point of time as per the agenda of kingdom. तो वहां पे जो वर्ल्ड विजन का जो स्थापक जो व्यक्ति प्रार्थना किया है करके मुझे स्मरण आ रहा है, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आज का जीवन को मैंने समर्पण करता हूँ कि मेरा पूरा आज का जिंदगी का पूरा प्रोग्राम को, मेरे एजेंडा को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। जहां उसको बदलना है आप उसको बदल दीजिए प्रभु। Praise the Lord. And that was happened. I'm taking examples by examples so that you'll be able to understand this concept. That what happened with the apostle Philip in Acts chapter 8. I will explain that. और वो इस प्रकार का उदाहरण बाइबल में और है जो फिलिपोस करके जो प्रभु का जो चेला है, उसका जीवन में भी इस प्रकार का एक घटना जो हुआ। There was great revival going on in Samaria, but all of a sudden Holy Spirit told, I am changing your placement. और एक बड़ा एक जागृति हो रहा समरिया में, तो तुरंत जो है पवित्र आत्मा उनको बोला कि मैंने तुम्हारा जगह को जो है बदलना चाहता है। Where? The Holy Spirit told, I want you to walk towards a place where there is nobody. और पवित्र आत्मा उनको बोला कि
Sir, you are muted. Please unmute. Yeah, please. The Holy Spirit told him that I want you to walk towards a place where there is nobody. और पवित्र आत्मा उनसे कहा कि आपको एक जगह में जाना है जहां पे कोई नहीं है। Philip would have asked, God, are you serious? फिलिप्पुस ने पूछा होगा प्रभु से, प्रभु क्या आप सही बोल रहा है? There is a great revival going on in Samaria. समरिया में इतना अच्छा जो है जागृति हो रहा है। I'm talking in my language, in my my own language. Tomorrow I have 5 preachings, Lord. तो मैं मेरा भाषा में जो है बोल रहा है कि देखिए प्रभु, मुझे जो है कल 5 जगह में प्रचार करने के लिए है। I already gave my appointment. They are all waiting. Meetings have been arranged. मैंने अभी जो है मेरा अपॉइंटमेंट दिया हुआ है कि मीटिंग सारा जो है तय किया हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा वहां पे। Holy Spirit would have told, cancel everything. पवित्र आत्मा बोला होगा कि उसको सबको कैंसिल करो, सब मीटिंग को कैंसिल करो। I'm changing your placement. मैंने तुम्हारा जगह बदलने जा रहा। Philip surrendered his life. फिलिप्पुस अपना जीवन को वहां पे समर्पण दिए He started walking. और जहां पे प्रभु ने बोला वहां के लिए उन्होंने जाने लगा। Here comes that Ethiopian eunuch. तो वहां पे एक व्यक्ति आया इथियोपिया से, जो इथियोपिया का जो रानी का जो नौकर। And Philip started conversing with him. And then he asked one question, are you able to read? Sorry, are you able to understand what you're reading? और वहां पे जो है फिलिप्पुस व्यक्ति से जो है मुलाकात हो गई रेगिस्तान में, और वहां पे फिलिप्पुस उनसे पूछ रहा है क्या आपने जो पढ़ रहा है उसको आप समझते हैं? I like the reply of the eunuch. He said, how will I be able to understand if somebody interpret? और उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने जवाब दिया फिलिप्पुस से, कैसे मैं समझेंगे जब तक कोई व्याख्यान करके नहीं देंगे तो। You know what he was saying? He was giving a mission challenge there. Where is the Philip of the church? I have been going through this path so many times. This is the first time I am encountering a disciple who believed in your placement. Praise the Lord. और उन्होंने जो है वहां पे एक मिशन चैलेंज दे रहा था कि जो फिलिप्पुस जो है यहाँ पे आना चाहिए। फिलिप्पुस कहाँ पे है कि मैंने जो है यहाँ पे फिलिप्पुस के लिए आया है कि जो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, मैं सोच के आया। Like this, lot of people are waiting for you to believe in your placement and walk in faith towards the places of Bihar, to the places where you are, according to the direction of the Holy Spirit, so that you'll be able to immediately see that you are getting connected to the mission. तो इसलिए जो है जहां कहीं परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, वहां पे आप जाने के वक्त में आप जो है विश्वास करेंगे कि वहां पे परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। तो प्रभु जो है आपके जीवन के द्वारा कई नया कर्तव्यों को जो है पूरा करना चाहते हैं, और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको रखा हुआ जगह और परमेश्वर आपको दिया हुआ जो है मिनिस्ट्री या कर्तव्य, वो दोनों के साथ कैसे रिश्ता आएगा, आपको पता चलेगा। Praise the Lord. I just wanted to close here with a couple of examples and then we will pray. यहाँ पे 1-2 उदाहरण बोल के मैंने यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। Another person is Joseph. At the age of 17, he got a dream. But the path he went was totally undesirable. दूसरा व्यक्ति है यूसुफ, जिनको 17 साल में परमेश्वर का दर्शन मिला, लेकिन दर्शन मिलने के बाद उनको जो जाना पड़ा, जो तरीका या जो रास्ता, कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहने वाला रास्ता नहीं था। Let me tell you, your path to influence will be different from Pastor Jean's. Pastor Jean's path to influence will be different from Simjan's. Each one of us has a very specific, personalized path to influence designed by our own Master. Hallelujah.
मैंने आपको बताना चाहता है, आपका जाने का तरीका नहीं होगा और पास्टर जीन को जाने का तरीका नहीं होगा, आपका जाने का तरीका। सिमजन को जाने का जो रास्ता नहीं है और कोई व्यक्ति को जाने का रास्ता, हर एक लोगों को जाने का रास्ता अलग अलग है। और आपके लिए जो है परमेश्वर जो वो रास्ता रखा है, जो रास्ता परमेश्वर आपके लिए व्यक्तिगत तौर से तय किया हुआ है, जिसके द्वारा परमेश्वर को अपना इच्छा पूरी करने पाए। You cannot be influential if you follow somebody's path to influence. You have to follow your path to influence, designed by your own master to become influential. आप अपना रास्ता में जाए, आप दूसरों के रास्ता में जाएगा तो कभी भी दूसरों का जीवन प्रभावित नहीं कर सकता है। आप अपना जो है रास्ता में जाना चाहिए, जो रास्ता आपका मालिक आपके लिए तय कर रखा हुआ। Joseph would have asked God, why this is not happening to my brother? यूसुफ ने पूछा होगा कि प्रभु ये जो परेशानी मुझे जो हो रहा है वो मेरे भाई लोगों को क्यों नहीं हो रहा। Their path is different, your path is different. उन लोग का रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। यूसुफ Joseph started believing in his placement. यूसुफ अपने के लिए परमेश्वर दिया हुआ जगह के बारे में विश्वास करने लगा, अपना जिम्मेदारी के बारे में विश्वास करने लगा। In a pit, in a prison, in Potiphar's house, everywhere he started believing this has been God's placement. और हर एक जगह में, जब जेल में गया, जब पोतीफर के घर में गया, हर जगह में यूसुफ ने विश्वास किया कि अभी जहां पे मैं है उस जगह प्रभु ने तय करके दिया हुआ। And finally, I just want you to read one verse. The climax, when he looked back, he saw the big picture. Genesis chapter 50 verse 20 says like this. When he is talking to his brothers. Can somebody read that verse? Genesis chapter 50 verse 20. 50. Yes. और ये जो कहानी का जो है अंतिम बात जो है हम लोग पढ़ता है उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय में जो है पढ़ते हैं। वहां पे वो अपना भाई लोगों के साथ बात करने के वक्त में एक कहानी पूरा हमें पता चलता है। He's telling to his brothers, you meant evil. Yeah, can somebody read that? Yeah. 26. 50, chapter 50 verse 20. यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग के प्राण बचे। Wow. You meant evil. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാര വെച്ചു, പക്ഷേ but God had a design in his mind, and little I knew that I was on my path to influence, and when I reached the climax, I understood God meant it to be good for a nation to be saved. This is the mission God was preparing for Joseph. यहाँ पे यूसुफ बोल रहा है कि तुम लोग मेरे लिए बुराई का विचार किया है, लेकिन परमेश्वर जो है उसी बात को भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचने का कारण पर में आप लोग जो किया हुआ बुराई के कारण अभी जो है मैं अभी जो स्थान में आ गया, और इसी कारण से बहुत सारा लोगों का प्राण बचने का एक मौका परमेश्वर ने जो मुझे दिया। Let me encourage all of you. If you are going through a path which is not desirable, but let me tell you, believe in your placement. God is up to something in your life, and soon you will be able to see the mission which you are going to get committed to, and automatically that will be revealed in your life. But don't ever try to bypass the placement in your life. तो इसलिए जहां कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है उसी जगह पर विश्वास के साथ रहिए। एक समय आने वाला है कि आपके जीवन का जो कर्तव्य जो है, जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा, उसी
जगह में पूरी होने वाला। तो इससे पहले परमेश्वर का उद्देश्य को बाईपास करने के लिए और परमेश्वर का उद्देश्य को पलट के जो है आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना। Let me conclude here by quoting a verse from the book of Esther 4:13 and 14. It's a very famous verse Mordecai is telling to Esther. और मैंने जो है एक पद पढ़ के जो है मैंने समाप्त करना चाहता हूं जो एस्तेर का पुस्तक से। Can you repeat the reference? If you remain completely silent at this time, you and your father's house will perish. But God will raise somebody else for the deliverance of Jews. And he continued, who knows whether you have come to the kingdom for such a time of this? Can you repeat the reference? What Mordecai is saying, the book of Esther, chapter 4, verse 13 and 14. 2 का 13 और 14 पद है एस्तेर का पुस्तक, उसका 2 का 13 No. Chapter number 4. Chapter number 4. ओके, 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद। वहां पे लिखा हुआ है कि मोर्देकाई जो है उनसे बात कर रहा है, एस्तेर से बात कर रहा है। अब मोर्देकाई ने एस्तेर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना करे कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो उस और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नष्ट होगी। क्या जाने कि तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। Let me explain to you that verse from the context of what we discussed today. आज हम लोग जो चर्चा किया उस पृष्ठभूमि से ये जो पद को मैंने विवरण देना चाहता हूं। Mordecai telling Esther, God has a purpose in your life that you will become a queen. But don't forget your placement. You are not a queen to enjoy your privilege. You are a queen placed by God with a purpose and for a mission. If you don't believe in your placement and act smartly, God is going to remove you from that position, and God will bring somebody else to commit to the mission. Amen. और मोर्देकाई कहने का मतलब ये है, मोर्देकाई बोल रहा है एस्तेर, तुम जो है अभी रानी बन गया है और तुम्हें जो है परमेश्वर ऐसा एक कठिन परिस्थिति जो यहूदी लोगों का जीवन में उस वक्त में जो हुआ उसी के लिए जो है रखा हुआ है। अगर तुम जो है अभी हमारे लिए काम नहीं करेगा तो यहूदी लोगों को उद्धार कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जो है तुम्हें रखा हुआ उद्देश्य वहां पे पूरी नहीं हो जाएगा। प्रभु ने तुम्हें रखा है वहां पे कि परमेश्वर का कर्तव्य के साथ एक रिश्ता होने के लिए एक जुड़ाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें वहां पे रखा हुआ। Esther committed her life. She believed in her placement. And you know what happened next? She got connected to the mission. And you know the history. And that is the only reason we have a book called Esther in the Bible. एस्तेर जो है अपना कर्तव्य के बारे में पता चला और परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया हुआ जगह और उनका जीवन का कर्तव्य को उन्होंने रिश्ता बना दिया, उस साथ में जो है जोड़ दिया। जोड़ने के कारण आपको मालूम है क्या हुआ कि आज हम लोग को पढ़ने के लिए एस्तेर का पुस्तक जो है हमारे लिए जो मिल गया। बाकी जो है एस्तेर का पुस्तक में जो है लिखा हुआ। It is not because that she had a purpose. It is because that she believed in her placement and committed to the mission. God decided to include the book of Esther in the Word of God. What a marvelous testimony. उसका मतलब यह है कि जब एस्तेर अपना जिंदगी को परमेश्वर के उद्देश्य के सामने जब समर्पण किया, परमेश्वर ने फैसला किया कि एस्तेर का नाम में पुस्तक जो है बाइबल में लिखा जाएगा, जिसमें एस्तेर को जहां पे प्रभु ने नियुक्त किया उस जो है जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को पूरा जो है निभाया, उसके बारे में जो है वर्णन किया जाएगा। Acknowledge the purpose. Believe in your placement.
And God will help you to commit to the mission. You are the light of the world, salt of the earth. May God continue to use you if you believe in your placement. May God bless you with these words. आपका जो है उद्देश्य को जो है अंगीकार करें। आपको जहां पे परमेश्वर रखा हुआ है, प्रभु ने रखा है, उस पर विश्वास करें। और ये दोनों आपके जीवन में होने के साथ परमेश्वर आपको दिया हुआ जिम्मेदारी के लिए आप अपना जीवन को समर्पण करें। तीनों आपका जीवन में हो जाता है, तब जो है आपका जीवन एक पृथ्वी पे एक ज्योति के समान चमकेंगे और पृथ्वी का नमक आपको बन जाएंगे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करें कि आज के वचन के सामने हमारा जीवन को समर्पण करें और आज जो सुना हुआ वचन के सामने हमारा जिंदगी को हम समर्पण करके हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचन जो सच है मेरे जीवन में, मेरा जिंदगी के बारे में एक उद्देश्य है आपका जीवन में, और वो उद्देश्य के लिए मुझे एक जगह में रखा हुआ और जहां पे मुझे रखा हुआ वहां पे आपके लिए एक कर्तव्य पूरा करने का जरूरत है। हालेलुया। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।